अरे अपने बच्चे हम अरे बोला Thank you so much. भाई बहुत अच्छा लगा Honored. थैंक यू Thank you so much, sir. Thank you, team. Thank you so much. थैंक यू सर बहुत अच्छा लगा है हाँ अच्छा से हो Actually, this picture is taken from one of their people that don't have that the housing waste places in roads and some may find different kind of forests. Both will definitely is being disposed. Actually, largest toilet complex है ये पंढरपुर का है and पंढरपुर is in Maharashtra. तो कहते हैं world का largest toilet complex है. इस पूरे complex में like day to day basis में different are available. Like we have got WCs are there, VIP toilets है, decoration purpose के लिए जो पूरा shooting है. ये सर वो का structure और बुक पे बोल करा है ये जो shit on the floor, shit on the floor. इसको हम लोग कहते हैं टेबल टॉप टॉयलेट और बुक मल्टीपर्पज टॉयलेट shit on the floor. So we call what he do, he built a toilet beneath the roof and at the same time he just took it as an era during the 18th and 19th century. जहाँ पे आप देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, पोएम्स हैं, you'll find everything just related to toilets. So this like we have gods being a big lesson for us. Took their time. So what they do, they actually just chose to defecate beneath under the bucket. And there were servants. They just used to clean the system inside. जो it automatically it verifies the unit. But actually so we have like sort of various articles then we have got one bag. So actually that is all that is a biodegradable bag. आपको waste उसमें जाता है just sit it in your hand and all the pressure does not create any pain and pressure. And हम लोग कहते हैं कि जो toilet है it has good center there. Maybe you are like one visually impaired. If your people are going to the picnic or so किसी आप लोग को you can just easily carry the toilet. What this is actually ये you find everything is based on civil construction. There are glucose chain, there is a diabetic chain, there is activity of the and in this case बहुत important है this actually अगर कहीं पे हम लोग बाहर हैं and we need a washroom और कभी कभी होता है washroom अपने nearby available left here to right hand area and with any blunt object draw this diagram जैसे आप देख रहे हैं draw this diagram anti-clockwise in a path area of vision 15 but एक चीज़ ध्यान में रहनी है कि वो anti-clockwise ही जाए so don't try to make it because क्या होगा clockwise and then we have got our next toilet so it perform your dual function this is a wash basin and then we have got a water closet and people they are using this particular toilet mostly in ships and submarines consumes a lot of electricity and they have to maintain it बंद करके you just push the start button then we have got a bed which is again you will like get converted ये देखिए ये जो है ये हमारा शेडी का ही टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है बट दिस इज द सेकंड टॉयलेट कॉम्प्लेक्स और इसमें भी सर मेरा सिमिलर फैसिलिटीज आर ये है इसके अंदर आप देखेंगे कि टॉयलेट्स है बाथरूम फैसिलिटी हो गया वाइस प्लांट्स आर देयर एंड बिकॉज शेडी इज आल्सो वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस दिस इज महाराष्ट्र सो मोर देन 30 to 40,000 people इसको पर डे रेगुलर बेसिस कन्वर्ट कर देता है सो इन इंडिया वी डोंट हैव दैट मच ऑफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस in you know like in the mobile toilet vans क्योंकि right now this technology अभी भी सारी इंडिया में नहीं आया they are like used to of these kind of These things have the same situation. Length is leakage of the pipe for the supplying water, isn't it? So there, Kejriwalji, what water he supplies, he guarantees that you can easily drink from the tap. These things, it's a very all over world. Like when we talk, I take example of tribals. They know these goals by 2030, so that everyone is equal. Great bath of Mohenjo-daro. The current scenario, major, disadvantage over here. And you can take the examples over here. Everything has been described. Like when we talk about water availability in the year 2001 and 2011, that was 1860 cubic meters, which decreased definitely to happen at that time period. They had, but not in this vast, situation. So here, conservation of water, like you can easily plan to frame water you're going to store. You can make channels side by side parallelly towards your road, so that your water gets collected and it will be collected
100% recyclable. But like आपका एक ड्रॉप से आप something बना सकते give towards the society is more important. At least efficiency. That is little bit okay. Ensuring that this conservation of water, like channeling of water during the heavy rains, We'll be is discussing over there. Dr. Pathak's invention is that side. This is all over your India and world. So top 10 water treatment plants. So first James W. Garden at Chicago. They gives you capacity of 1.4 billion gallons per day. Water price. That was in Stockholm, Sweden in 2009. Due to his work done in water sector. Through that he got this award in 2009. That was in Stockholm, Sweden. The main motive to establish this organization is two main motives. First, to eradicate the open defecation properly. Secondly, to liberate the scavengers on the untouchable path so that they can easily compete with the mainstream of the society. खत्म करना, उनको पढ़ाना लिखाना एक respectful language. Like this is your individual household वाला toilet. So individual household means who will be the users then? बेसिकली 2 पीठ हम लोग बनाते हैं। एक समय में एक पीठ का यूज होता है। बॉटम जो होता है सॉइल के कनेक्शन में होता है। एक समय में एक पीठ यूज किया, 3 साल में जब ये भर गया तो हम दूसरे में चेंज ओवर कर देते हैं। तब तक पहला वाला जो है विदिन 1.5 ईयर डिकम्पोज हो जाता है, जिसको निकाल के मैन्योर में यूज कर सकते हैं। सीवरेज में आपको 10 to 15 लीटर वाटर ज़रूरत होता है। यहाँ 1 से 1.5 लीटर पानी बहुत सफिशिएंट है। तो लगभग 85% वाटर जो है हम सेव करते हैं। देखें तो लगभग 70 मिलियन लीटर ऑफ वाटर इज सेव्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी पर एनम। जो हम तो वो कितने लोगों को सर्व करेगा? तो यदि हम अर्बन एरिया में करें तो 514 मिलियन लोगों के फुलफिल हम कर सकते हैं। वाटर अब लोगों के लिए हम वाटर दे सकते हैं। क्यों ये अंतर क्यों है? तो अर्बन एरिया में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है 155 लीटर पर कैपिटा है और अर्बन एरिया में शायद 55 लीटर के अराउंड है। हाँ 55, अर्बन में 135। तो आर्सेनिक की वजह से घाव काफ़ी हो जाता था लोगों को, मतलब स्किन डिजीज काफ़ी था, इवन कैंसरस भी था। उस एरिया में हम लोगों ने करीब 6 जगह पे ग्राम पंचायत की सहायता से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। जैसे यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं जो पंप से हमने पानी लिया, कुछ जगह कुआं से भी हमने लिया है, जो वेल से भी लिया है, और इसको एक्चुअली में ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ट्रीट करके और इसका बॉटलिंग किया है। और अभी फाइनली जो है हम लोग ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया और वो लोग 50 पैसे लीटर के हिसाब से ग्रामीण एरिया में पानी दे रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ, जो ये प्रोजेक्ट 5-6 साल से है, इसका परिणाम ये हुआ जो स्किन डिजीज वगैरह जो इतना ये स्प्रेड था वो कम हो गया, ख़त्म हो गई। एक्चुअली इसमें ये होता, जैसे ये वेल से कुआं से हमने पानी लिया, इसके बाद केमिकल डोजिंग करते हैं। यहाँ पे केमिकल डोजिंग करके स्लो सैंड फिल्टर में फिल्ट्रेशन करके उस क्लीन वाटर को फिर हम एक टैंक में रिजर्वायर में जमा कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम लोग इसको अल्ट्रा वायलेट नहीं सॉरी ये उसके बाद हम इसको ये क्या कहते हैं उसको, कार्बन फिल्टर्स नहीं 10 माइक्रोन 10 माइक्रोन 5 माइक्रोन और 2 माइक्रोन के फिल्टर से क्रॉस करवाते हैं। तो जो भी गंदगी वगैरह है वो खत्म और कार्बन तो उससे पहले कर लेते हैं, कार्बन फिल्टर, उसके बाद माइक्रोन वाला जो फिल्टर है 5 माइक्रोन 2 माइक्रोन और 1 माइक्रोन से क्रॉस करवा देते हैं और फिर यूवी में ले जाते हैं और फाइनली ये वाटर आ जाता है आपको। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो आरओ घर पे लगे हुए हैं उसका इंडस्ट्रियल मॉडल है। हाँ, आप एक तरह से कह सकते हैं, बट ये जो घर में आरओ है सर ये उतनी सफिशिएंट नहीं है। इसमें वाटर वेस्टेज कितना होगा जब फिल्ट्रेशन कर रहे हैं आप? सर दैट अगेन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वाटर। जितना वाटर की क्वालिटी खराब होगी उतना मतलब वेस्टेज होगा। यहाँ एक्टिवेटेड चारकोल चूँकि आर्सेनिक है तो वहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल से हमको क्रॉस करवाना जरूरी होता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं हो वेस्टेज नहीं, मतलब क्लीन वाटर होगा। TDS या TS वगैरह जो है टोटल डिजॉल्व सॉलिड या मिनरल वगैरह यदि उसमें कम होंगे तो हमारा वेस्टेज उतना कम होगा।
48 आवर इट मस्ट बिकम डबल एंड ग्रेजुअली जो है वाटर को क्लीन कर देता है। उस क्लीन वाटर को आप दूसरे तालाब में डाइवर्ट कर लें और उसमें फिश ग्रो करवा लें और एज ए फूड ये प्लांट हम फिश को फीड करते हैं। देन दी ग्रोथ ऑफ फिश बिकेम 2 to 3 times मोर देन दी कन्वेंशनल सिस्टम बिकॉज इस प्लांट में विटामिन ए, विटामिन सी और प्रोटीन जो है सर 28 to 31% तक है, तो जितना सोयाबीन में है। तो जब फिश उसको खाती है तो ग्रोथ काफ़ी ट्रेमेंडस हो जाता है। सो एट द सेम टाइम आपको दो पर्पज सॉल्व हो, वाटर बिकेम क्लीन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू पेसिकल्चर स्ट्रेन है। और नेहरू बिहार में 16 ऑक्सीडेशन पॉइंट है एमसीडी का, वहाँ पे हम लोगों ने 5 लिया था रिसर्च कम डिमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। अब यहाँ आप कलर देखें सर वाटर का कितना ब्लैकिश वाटर है आप, और इससे पानी क्रॉस करवाते हैं तो पानी का कलर आप देख लीजिए फार बेटर। यहाँ की बीओडी लेवल 160 के अराउंड होता था एवरेज, यहाँ आके आपको 20-25 के अराउंड हो जाता है। लिक्विड हार्वेस्ट किया और हार्वेस्ट करके फिश फीडिंग स्टेशन हो जाए और फिश कैसे खा रहे ये आप देखिए। कितने टाइम में इतना चेंजेस आ जाता है? ये एक्चुअली में टोटल प्रोजेक्ट जो है 9 मंथ का है, क्योंकि आपको फिश ग्रो करवाना है। इसे लाने के लिए कितना टाइम? ये आपको हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट की ये देखा था तो ये 24 आवर टू 48 आवर के अराउंड हमको डिटेंशन HRT जो कह सकते हैं वो देते हैं। ओके। और कितना एरिया का? 1 हेक्टेयर का था और 2 स्टैंडर्ड जो हमारा आया था, जो आप MLD में पूछेंगे मिलियन लीटर कितना ये होता है, तो जब वाटर का एक्चुअली में तो हम ये भी नोच लगा रखा था, यहाँ से वाटर फ्लो को हम लोग ये करते थे, मेजर करते थे। तो 2 से 2.5 MLD तक हमारा जो ऑप्टिमम लेवल था यहाँ की बीओडी के लिए, जो फिश के लिए 2 से 2.5 MLD तक हमारा ये रहता था। 20 कभी 10 भी होता था। मैं पिक्चर्स ले सकता हाँ क्यों नहीं। मेरी वीडियो बना ली। अच्छा, इसकी बना ली। हाँ। ओके। और ये फिश है देखिए, फिश जो खा रही तो प्रोटीन है ना। और यदि कोई आपको टेक्निकल कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। और ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सुलभ इंटरनेशनल और IPHE कैलकाटा तीनों मिलके एक कंबाइंड प्रोजेक्ट किया था हम लोगों ने। और परहैप्स दुनिया की ये इकलौती टेक्नोलॉजी है इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दैट हैव डायरेक्ट इकोनॉमी रिटर्न अप टू 70 to 80% सर। नहीं तो वेस्ट वाटर इसीलिए नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है जो डायरेक्ट रिटर्न नहीं है उसमें, लेकिन इसमें डायरेक्ट रिटर्न हम लोगों ने दिखाया था। जो फिश सेल करके आपको जो भी इसका ट्रीटमेंट में कॉस्ट आ रहा है, कितना कॉस्ट आता है? एक्चुअली 4-5 लेबर हमारा कंटिन्यू रहता था वहाँ पे। नहीं, लेबर कॉस्ट प्लस जो आप इसमें बाकी तो कोई है ही नहीं। बाकी कहाँ कोई कष्ट है, वो तो ये है जो नेचुरल। और वो हर सप्ताह हम एनालिसिस करते थे लेबोरेटरी में, तो हमारे पास लैब है खुद का। मेजरली तो सिर्फ लोगों को देखना है ना, बाकी यू आर नॉट पुटिंग एनी केमिकल्स, यू आर नॉट पुटिंग कुछ नहीं है इसमें, बस यहाँ से डकविड निकालिए सीधा सीधी, यहाँ से डकविड निकालते थे, जैसे ये हार्वेस्ट किया और ये 3, और आप बिलीव करेंगे एक दिन में 8 से 10 क्विंटल तक पर डे फिश खाती थी। इतनी जल्दी ग्रो। इतनी ज़्यादा growth। वही वो बोल रहे हैं ना, एल्गी ग्रो इमीडिएटली होती है उसके अंदर। अब उस एल्गी को समेटना वो वाली चीज़ है। वो कठिन चीज़ है सर। यदि आप देखें तो अलगी बहुत ही मतलब बायोलॉजी की भाषा में आप जाएँ तो बहुत ही यूजफुल चीज़ है। हम लोग जो टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं उसमें भी अलग ये सब्सटेंस है, लेकिन यहाँ पे हमको वो प्रॉब्लम थी अलगी से। अलगी जब ग्रो कर जाती थी तो पॉन्ड का जो ये होता था, मतलब इनसाइड जो होता था
जैसे ये डक्यूट है, इनसाइड में आपको अंदर नहीं है। हाँ एनारोबिक कंडीशन हो जाता था Okay. और CO2 रिलीज करना शुरू होता था। फिल्ट्रेशन प्लांट वैसा एल्गी उसमें ग्रो करके उसमें अगर पानी उसके थ्रू फिल्टर करें तो वो बेटर नहीं रहेगा? नहीं होगा सर, इसमें फ्लो वाटर चाहिए। हाँ तो उसमें तो वाटर फ्लो ही करेगा ना algae? नहीं तो उस लेवल में और इस लेवल में थोड़ा अंतर आ जाएगा। मेरे ये हिसाब से प्योर इसके सीवेज अंदर- है। इसके अंदर साथ में तेरे को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में चाहिए होगा ना, धूप से। हाँ नहीं, पर वो तेरा अंदर कैप्टिव में धूप कहीं आएगी नहीं। अब वो हमें देखना है एरिज़ोना में वो क्या कर रहे हैं। अगर सिर्फ- उसको फाइबर क्लियर एक चीज और हम बता दें, इसका जो ड्रॉबैक है, जब टेम्परेचर बिलो 15 आता है तो ये ग्रो नहीं करता है। सर्दियों में ग्रो नहीं करता। नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्रो ही करेगा। हम लोगों को ये नेहरू बिहार में ये समस्या होती थी, जो जब टेम्परेचर 10 के अराउंड हो जाता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो लगता था वॉश आउट हो गया। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ा दिन होता था, 10 दिन 15 दिन। अब जैसे अभी समर वाला समय आ गया तो ये भी जो जैसे हम बताए, जो एस्पायरोडेला जो है बहुत अच्छा ग्रो करता है 20 से 40 डिग्री पे। लेमना जो है 35 डिग्री तक अच्छा, 15 to 35 तक बहुत अच्छा ग्रो करता है। टेम्परेचर का भी स्टडी हमने किया था। और उल्फिया जो है वो आपको सदाबहार है, वो आपको 20 से लेके 45 डिग्री तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि एल्गी का जो टेक्नोलॉजी है वो वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने में इतना इफेक्टिव नहीं है? नहीं, हमने ये नहीं कहा सर, हम ये नहीं कह रहे हैं। जो एल्गल ग्रोथ से देखिए, एल्गी को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उससे बहुत सारा प्रोडक्ट निकलता है। हाँ। बहुत ह्यूज आप देखेंगे उसका, तो बहुत ही ये चीज़ है, उसका उपयोग है। नहीं वो तो बायो प्रोडक्ट्स वाला बनाने में उपयोग है, पर हमारा मेन कंसर्न है कि अगर उसको हम यूज़ करें फॉर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड हाउ टू इम्प्रूव एयर पोल्यूशन। नहीं सर, हमको जहाँ तक लगता है जो एल्गल ग्रोथ से आपको वाटर ट्रीटमेंट नहीं होगा। हमको जहाँ तक नॉलेज है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन एल्गल यदि ग्रोथ होगा तो आपको इनसाइड ये आपको एनारोबिक कंडीशन प्रिवेल करेगा। और जैसे ही लेयर में ये आपको ऊपर से लेयर बन गया, पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है सनलाइट से, तो वो होता क्या है, जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड नीचे बनेगा तो नीचे का जो बॉटम है वो उसमें खलबली मचाएगी थोड़ा सा। इसीलिए हम लोग जो आप देखते हैं ये जो बैम्बू फेंसिंग किया है, तो होता क्या था, इनसाइड यदि सनलाइट नहीं घुसता था तो ईच एंड एवरी चेम्बर उससे हम लोग 20% हार्वेस्ट करते थे। और मैनुअली ये लेवर जैसे ये था, ये जाता था, इसमें घुसता था, तो जैसे ही ये घुस के ऐसे ऐसे करता था तो एरेशन होती थी। हम लोगों को यहाँ भी प्रॉब्लम हुई थी विंटर में। होता क्या था, तो जाड़े के महीने में जब ऑक्सीजन की लेवल काफ़ी कम हो जाती थी पॉन्ड की, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता था वो 1-2 पे आती थी, तो मछलियाँ ऊपर आ जाती थी। तो हम लोग को समस्या, पहला साल तो हम लोग सोचने और ये में हम लोगों का थोड़ा खराब हो गया, उतना प्रोडक्ट नहीं मिल पाया। लेकिन बाद में हमने क्या किया, पंप सेट जो होता है, पंप सेट खरीदा और यही इसी में पंप सेट लगाया, इसी पानी को लेके फिर इसी पानी तालाब में ही फेंका, तो वो एरेशन हो जाता था। तो एरेशन यदि सुबह, ये मोस्टली घटना होती थी आपको 5 बजे 4 बजे सुबह से लेके 6 बजे के बीच में, तो वो एरेशन हो जाता था पंप से। तो पंप से एरेशन हो जाने के बाद ऑक्सीजन काफ़ी घुल जाती थी। ये चीज़ गांव घर में हम लोग देखे थे जब छोटे थे, तो नदी उदी में जब या पोखर वगैरह में मछलियाँ ऊपर हो जाती थी तो लोग पानी को पीटता था लाठी से, वो जाड़े के दिनों में। तो उस समय में उतनी समझ नहीं थी जो क्यों ये लोग हो रहा है। और उसी के थ्रू वाटर भेजेंगे तो फिल्टर होके आने के क्या चांसेस अच्छा है? मैं अभी नहीं जानता सच में,
बात ये है कि एक एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के अंदर एक इसका एक छोटा प्रोटोटाइप शुरू किया है, जिसके रिजल्ट अभी इस मंथ एंड पे आएंगे, और उसके हिसाब से दे वांट टू प्लान ए 40 फीट कंटेनर के अंदर उसी चीज़ को वो डेवलप करना चाहते हैं। और वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि जैसे हमारी सोसाइटीज़ है, ये सब है, अगर वो चीज़ सक्सेस हो जाती है तो एक 40 फीट कंटेनर आप जानते हैं कितना सा होता है, तो अगर एक सोसाइटी में लग भी जाएगा और आपका वेस्ट वाटर वहाँ से जो निकलेगा, और उसका बाई प्रोडक्ट उन्होंने एल्गी बताया है कि एल्गी बहुत निकलेगी इसके अंदर, और वो एल्गी अगर बाहर आएगी और पानी ट्रीट हो सकता है अगर उससे, मैं नहीं जानता अभी कितने रिजल्ट्स आएंगे क्या आएंगे, वो तो मैं जाकर देखूंगा अभी क्या देखें चीज़ सर, हो रही जो है। अलगल ग्रोथ वाली जो नेचर है, मैडम जो कही है वो एकदम सही कही है। हमको जितना हमको भी मतलब वो लग रहा है कि उससे हमको ये हो सकता है कुछ और चीज हम आप नहीं समझ पा रहे हैं उनका पेपर, उनका पेपर देखने के बाद। बट अलगल ग्रोथ से आपको वाटर ट्रीट हो जाए ये नहीं हो सकता है। क्या बताया सर? Tell a small bit. Place the graph. Do it again. Place the graph. Cover it with the. How much time it takes? 2 years average, right? 5 users, 2 is capacity according to need and cost. So you can smell there is nothing inside. It's just like a soil. But how do you ensure that the water which is being seeped into the soil, that is not a treated water? But वेस्ट वाटर ज़्यादा है, नीचे तो सॉइल है, उससे सीप हो रहा है। हाँ हो रहा है, लेकिन लेस अमाउंट ऑफ वाटर जाता है ना, कंटिन्यूसली आपका बल्क में नहीं जाता है, दैट इज इट टेक्स लेस टू लेस अमाउंट एंड एज इट या अल्टीमेट सॉइल फिल्ट्रेशन तो कुछ नहीं है। अगर आपका डेप्थ जहाँ पे आजकल इतना अंडरग्राउंड, जैसे आपने वाटर लेवल बात नहीं कर रहा, अगर सपोज वाटर लेवल से नीचे है, इस लेवल पे जब बारिश होगी आसपास पानी आएगा, तो जो है यहाँ का जो वेस्ट है दैट विल गेट अफेक्टेड इन द वाटर, जो आसपास इकट्ठा हो गया ना, नहीं होता है ना, वो जा ही नहीं पाता है ना, इतना चारों दूर तरफ तक नहीं से जा पाता पाता है। नीचे तो सॉइल नीचे जा ही रहा है। सॉइल नीचे जाता है, साइड बाय साइड ऊपर नहीं जाता है ना, आपका कंटिन्यू वाटर नहीं आता ना, टिल द टाइम इट्स ऑलरेडी कन्वर्टेड आल्सो ऑन द स्पॉट, मतलब 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के लिए होता है, इट्स नॉट रेगुलर लाइक आपका 6 मंथ्स कंटिन्यू वाटर उसमें But how do you ensure that nutrients and the soil is not getting polluted? पोल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि इसमें जबकि है तो वो वेस्ट ही ना, नहीं तो पानी तो उससे क्या होगा हैं? पानी तो गंदा जाएगा। पानी तो गंदा जा रहा है, बट वो सारा का सारा खत्म तो होगा ही ना, बैक्टीरिया तो अंदर पैदा होकर उसको खत्म कर ही रहा है। और पानी ऐसी टाइप रिजल्ट आउट नहीं होगा ना, नीचे नीचे नीचे, वो भी तो सॉइल फिल्ट्रेशन तो रहेगी। रिपीट मतलब कब कितने साल चल जाता है? 2 साल है, 2 साल नहीं, बट उसके बाद कंटिन्यूसली साइकिल वही 2 साल इधर फिर स्विच ओवर करते हैं ना हर बार। वन टाइम। Yeah, PM Modi when he has promoted this technology, more than $9 million has been constructed in this design, on this particular design. Okay, and it can be constructed with locally available materials and any area you want to. Like अगर हम लोग बात करते बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोटी कपड़ा मकान को भी अफोर्ड कर सके। इट्स नॉट अबाउट इट्स फॉर एवरीवन। सो उनके लिए क्या होता है कि आप अगर पहाड़ी इलाके पे हो तो पहाड़ पे सिर्फ आपके क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, तो पत्थर में तो अंदर जाके नहीं होगा, तो आप क्या करते हो, पत्थर से आप जब डिज़ाइन करते हैं तो आपको 1 मीटर तक सॉइल लगाना पड़ता है नीचे बेस की सॉइल, ताकि आपका प्रोसेस इसलिए टेक प्लेस करता है। और साथ के साथ आपका कंटिन्यू जब एक बार सॉइल में कन्वर्ट मतलब इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है तो आपका क्या होता है ना, सॉइल बिकम्स फर्टाइल विद द टाइम। एक ही बार की बात है। एंड आपका जो ये वाला सर ने बताया स्पॉटिंग सिस्टम वाला, तो ये जो पैंट्स होते हैं दीज आर डिज़ाइन इन अ फॉर्म लाइक आपका जो नॉर्मल होता है वो 20 to 22 डिग्री स्लोप होता है, तो उसमें कितना पानी 20 लीटर्स 15 लीटर्स 12 लीटर्स वाटर चाहिए बाहर निकलिए, बट द एंगल इट्स हियर 25 to 28 डिग्री स्लोप, तो ऑलमोस्ट टू वेस्ट मटेरियल गोज इनसाइड। दिस इज द पी ट्रैप व्हिच इज attached to it, आपका सारा वेस्ट मटेरियल the second liter of water it goes and stores into the P trap well tube, right? It doesn't allow your waste material, smell, gas or anything to come outside the pan again, and it works like in the areas where you have -3, not -2, -3, -20, -19, -16, it doesn't freeze. Why? The gas heat
which is formed inside. It doesn't allow water to get released, and you can see the blockage over there. वो पूरा block हो गया, so it doesn't allow water to get released. Means mix limestone with limestone add करने के बाद क्या होता है, you can easily preserve and use it for the agriculture, gardening, farming, whatever purpose you want to. Then नहीं कह सकते in India, but or you can say कि आप designer doors kind of आप taboo हटा रहे, to eradicate that taboo that I am also touching, you touch, me touch, anyone can touch. Like you cannot have that taboo कि आपका वो untouchables को ही touch करना है. This can. जोर से. Isn't it? So we have solar also. We are just planning to cover and separate it if you want. जोर से मारो. This is in the forest area. Forest area में आपका wooden bamboos are present. Wooden bamboos you can easily construct, but wooden you can easily replace available here. Six lines, right? They don't want that आपका privacy is blocked, but they feel suffocated. They have some kind of phobia, habitual of going to the outside. So there's no roof, right? Roofless area. No doors also, but privacy is limited. Nobody's going to see that. And for the indication purpose, you can keep a water bucket outside, by which it indicates that somebody is in the and individual hospital. So every family will be on that one. Sand, थोड़ा हटाते हैं, make sure कि आप क्या करते हैं. So ये भी आप लोग बना सकते हैं. सबसे पहला वाला मॉडल बताया था, ये वाला वायरस देख किया उसके साथ. हिंदी कम्युनिटी वाले साथ जैसे पढ़ पढ़ा वो सर आपको देखिए जो सर की मेंटेनेंस आपको बता रहे हैं 7 एक साइंटिफिक टीम रहती है. मेंटेनेंस कॉस्ट वेरी है, ठीक कहते हैं, तो वो भी है. तो इट्स लाइक बैलेंस. इफ यू वांट यू कैन कंस्ट्रक्ट, यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ऑल्सो. इससे नीचे तो बीस निकलनी छोटी-छोटी इसको आप अपने से फॉर सम एरिया यू कैन नॉट सच टेक्निकल सॉल्यूशन एंड दिस इज नॉट पेटेंट. Chamber and you get this water. This is real human waste water treated. आपको नॉर्मल पानी चला के नहीं दिखाया. ये एग्जैक्टली लाइव है आपका. जो आ रहा है गंदगी पानी उसको हमें तो पाइपलाइन से जो जितना यूज़ हो पाता है वो यूज़ कर सकते हैं आप. तो इसीलिए आपको लाइव दिखाई कि ऐसे गैस भी हम लोग है ना थ्रू पाइपलाइन यूज़ कर पाते हैं. Menstrual hygiene aspect, but mostly in a very informative and interactive way. We have a huge group of network of school students and college youth who are our peer educators. Where they will go and educate, sensitize, motivate, advocate other school children in the schools, in the colleges, in the locality, and all the aspects of components of sanitation, but mostly which are concerned to them. Not about the hardware component, but about the software component we deal about. So we provide education and knowledge first, then we come to the provision of the sanitary pads, because we believe that unless and until a woman or a girl is informed about, aware about her own body, she won't be understand the concept of using a pad or any other menstrual hygiene products. So we make our own sanitary napkins. We have these machines in this room, you can see, which helps us in making a sanitary pad. That's the Pulf, I think she must have told you that, which has to be. Yeah, we weigh it and we press it into dies over there. That's the automatic one, that's the manual one. So we use it alternatively as and when required by a girl. So we press it to give a proper shape to the pad. Wrapping is done with this fabric and we seal it with the help of the sealing. So that if at all any pathogen is present in the pulp, it can be killed and removed, and then we use it. This is simple sterilizing. Per pad, one pad. Available in institutions or wherever you're walking.
we are asking them at least you should have the provision of a sanitary napkin vending machine and a destroyer. Even if you're inserting a token or a coin or a fingerprint or then everyone at least to have this. Because as such, in India, we don't have any alternative of disposing sanitary pads. We are still looking for resources or any other methods or technology which can be used to dispose sanitary pads, but I don't think we have one right now. As of now, इतना research हो चुका है, but अभी तक तो हमें तो नहीं मिला है. We still asking people that if you have any research pads, that would be very nice. So we are asking everyone to use at least use the incinerator because girls have this very bad habit of disposing it in dustbin or in the toilet. So we are asking them to use the destroyer at least so that you don't throw it here and there and use soil pads can be dumped inside it. You switch it on, it gets converted into ashes within few minutes by burning.